Welcome students. Let us continue the chapter Computer Languages part 2. So first topic is high level languages. Let us focus on this image. At the bottom we have hardware. Here hardware means your computer or laptop. As you know, computer is a machine which understands only machine language. So we have machine language above this, and it contains zeros and ones. After machine language, assembly language was developed, which contained mnemonic codes or mnemonic symbols. Then we have high level language. There are various languages nowadays which are in use: Python, Java, JavaScript, Scratch, App Inventor, etc. Now let us move to next slide. This is a portion taken from your book. The restrictions in the usage of machine and assembly languages prompted people to develop a language with the following features. The first feature is simple and user-friendly language. Second feature, language that is machine dependent. इसका मतलब जब मशीन और असेंबली लैंग्वेजेस आई तो दो प्रॉब्लम्स फेस की गई। एक तो ये बहुत डिफिकल्ट थी, आसानी से हर कोई इनको नहीं समझ पाता था। दूसरा, इन लैंग्वेजेस में जब कोई प्रोग्राम बनाता था तो वो प्रोग्राम किसी और मशीन पर नहीं चल पाता था। इट मीन्स these two machines were low level languages. इन्हीं रीजंस की वजह से हाई लेवल लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ। नाउ दीज हाई लेवल लैंग्वेजेस हैव टू मेन फीचर्स। एक तो सिंपल होती है समझने में और यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज है, आसानी से हर कोई इसमें प्रोग्राम बना सकता है। दूसरा, इट इज मशीन इंडिपेंडेंट। ये मशीन पे डिपेंड नहीं करती, यानी कि किसी भी कंप्यूटर पर आप इन लैंग्वेजेस को यूज करके प्रोग्राम बनाओ, वो किसी और कंप्यूटर पे आसानी से चल जाए। राइट। See another paragraph. Owing to the above mentioned features, it became easy to learn and use the computer languages. A large number of people started writing computer programs using these languages. That is why it is known as high level language. So high level language is quite similar to English language. जैसे मैंने एक प्रोग्राम बना करके आपको दिखाया था बेसिक में, ब्लू स्क्रीन जो थी उसमें CLS लिखा था, इनपुट लिखा था, प्रिंट लिखा था। तो ये हमारी समझ में इजीली आ जाता है बिकॉज दीज आर क्वाइट सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज. So there are various languages. Let us see some examples. Basic, basic एक लैंग्वेज का नाम, ठीक है. C, C++, Java, etc. These are all some of the very popular examples of high-level language. Now, high-level language programs need to be translated into machine language by using translator programs. अब high-level language हमारी समझ में तो आ जाती है पर कंप्यूटर नहीं समझता, इसलिए ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स की जरूरत पड़ती है. So we have two types of translator programs. एक इंटरप्रेटर होता है और एक कंपाइलर. Let us see them one by one. So this translator program is used to convert a high-level language program into machine language. An interpreter translates line by line. ये line by line translation करता है. Executes the instruction. एक लाइन पढ़ी, उसको रन कराया. Then repeat the procedure for the remaining instruction. फिर next instruction पे जाएगा और यही काम फिर से दोहराएगा. If any errors are found, अगर कोई एरर मिलता है तो वो उसी समय इमीडिएटली रिमूव करना पड़ता है. ऐसा नहीं कि आप पहले पूरा प्रोग्राम बना लें तब काम होगा, ऐसा नहीं. The converted form is not stored anywhere. Therefore, it has to be generated at the time of execution.
इंटरप्रेटर इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्ट करके कहीं और स्टोर नहीं करता, एग्जीक्यूशन के टाइम पे ही ये काम हो रहे हैं। एग्जीक्यूशन का मतलब है प्रोग्राम को रन कराना, ठीक है। इंटरप्रेटर प्रोग्राम्स आर प्रिफर्ड फॉर बिगिनर्स एंड आर स्लो। सी दिस फैक्ट, राइट? The term software was first used by John W. Jeffrey in 1987. Now, see here, there is a block diagram of interpreter. यहाँ से आपको और easily समझ में आ जाएगा। See here, one line of high-level source code, यानी कि high level program में जो आपने प्रोग्राम लिखा, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको गूगल बेसिक में प्रोग्राम लिख करके दिखाया था, तो आपको नंबर्स मिले, तो एक लाइन पढ़ी, वो लाइन पहली लाइन इंटरप्रेटर के पास गई। इंटरप्रेटर ने अगर कोई एरर नहीं, उसको कन्वर्ट किया और टेम्परेरी आउटपुट आपको दिखा दिया, राइट? बट इफ एरर इज देयर, तो आपका एरर की वजह से इंटरप्रेटर काम बंद कर देगा, फिर आपको उसी समय एरर दूर करना पड़ेगा, दोबारा से उसे रन कराना पड़ेगा। सही है तो इंटरप्रेटर आपको उसका आउटपुट दिखा देगा, राइट? नाउ लेट अस सी some points, some more details about interpreter program. So interpreter programs are able to read, translate, and execute one statement at a time from high-level language. एक बार में एक statement run करता है, clear है? The interpreter stops when a line of code is reached that contains an error. अगर किसी लाइन में error है, interpreter काम करना बंद कर देगा उस लाइन में। Interpreters are often used during the development of a program. They make debugging easy. Debugging का मतलब बताया था मैंने आपको last time. Debugging means finding out errors and removing them. They make debugging easier as each line of code is analyzed and checked before execution. Debugging आसान कैसे हो जाती है? हर एक लाइन चेक की जाती है और तुरंत उसको एनालाइज किया जाता है कि वो रन हो रही है कि नहीं, इसलिए डीबगिंग आसान हो जाती है। इंटरप्रेटेड प्रोग्राम्स यानी वो प्रोग्राम्स जिनमें इंटरप्रेटर यूज होता है। इंटरप्रेटेड प्रोग्राम्स विल लॉन्च immediately but your program may run slower than a compiled file. ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, नो एग्जीक्यूटेबल फाइल इज प्रोड्यूस्ड। इंटरप्रेटर प्रोग्राम्स में कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं बनती है। द प्रोग्राम इज इंटरप्रेटेड अगेन फ्रॉम स्क्रैच एवरी टाइम वी लॉन्च। हर बार जब भी प्रोग्राम आप रन कराओगे तो इंटरप्रेटर हर बार काम करेगा। नाउ लेट अस सी हाउ कंपाइलर वर्क्स। आगे बढ़ते हैं। कंपाइलर कंपाइलर भी एक ट्रांसलेटर है। इट इज अ ट्रांसलेटर प्रोग्राम यूज्ड टू कन्वर्ट अ हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम into machine language. A compiler translates the whole program at ये है मेन चीज। इन वन गो, एक ही बार में पूरा प्रोग्राम, चाहे 1000 लाइन्स का प्रोग्राम, पूरा प्रोग्राम पढ़ेगा, उसको ट्रांसलेट करेगा, ऑब्जेक्ट कोड बनाएगा, उस ऑब्जेक्ट कोड को फिर रन करके देखेगा। दैट इज, it generates the object code for the program along with the list of errors. अगर errors हैं तो उनकी लिस्ट आ जाती है लाइन नंबर्स के साथ। The execution is very fast. Here, let us see the know the fact. The first interactive computer game was Space War. ये फिल्म वगैरह में आ जाता है कभी कभी। See, this is a block diagram of compiler. इससे और इजीली आपको क्लियर हो जाएगा व्हाट कंपाइलर डज। यहाँ देखिए, ऑल हाई लेवल सोर्स कोड यानी सारी की सारी लाइंस जो हाई लेवल प्रोग्राम में लिखी गई, ये कंपाइलर के पास जाती है।
Compiler converts all these lines और statements in one go, एक ही बार में सारी की सारी लाइंस ट्रांसलेट होती हैं। देन ऑब्जेक्ट कोड इज क्रिएटेड, और यही ऑब्जेक्ट कोड है जो रन होता है, यानी एग्जीक्यूटेबल है, एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, जस्ट अ सेकंड। ठीक, एग्जीक्यूटेबल। और अगर कुछ एरर्स हैं तो ये एरर्स को रिपोर्ट करेगा, यानी कि स्क्रीन पर एरर्स को दिखाएगा। लेट अस सी सम मोर पॉइंट्स रिगार्डिंग कंपाइलर्स। Compilers are used to translate a program written in high level language into machine code। उसी को ऑब्जेक्ट कोड बोला जाता है। Once compiled, एक बार कंपाइल हो गया, all in one go, the translated program file can then be directly used by the computer and is independently executable। फिर प्रोग्राम की जरूरत नहीं पड़ती, एक बार ऑब्जेक्ट कोड तैयार हो गया, फिर आप उस ऑब्जेक्ट कोड को किसी भी कंप्यूटर में इजीली चला सकते हो, डबल क्लिक करो, प्रोग्राम आपका रन हो जाएगा, बार बार कंपाइलेशन की जरूरत नहीं पड़ती। सो दिस इज फार बेटर एज कंपेयर टू इंटरप्रेटर। थर्ड पॉइंट, कंपाइलिंग may take some time, but the translated program can be used again and again without the need for recompilation। यही मैंने अभी बताया आपको, कंपाइलिंग में टाइम लग जाता है, और वो भी माइक्रो सेकेंड्स में लगता है, हमें तो पता भी नहीं लगता कि हो भी गया, बहुत कम टाइम लगता है। क्लिक किया, थोड़ा सा टाइम लगा, 1-2 सेकंड, हो गया कंपाइल। सो कंपाइलिंग में टेक सम टाइम, बट द ट्रांसलेटेड प्रोग्राम, यानी कि जो ऑब्जेक्ट कोड है, जो ट्रांसलेट होकर के बना ऑब्जेक्ट कोड, दैट कैन बी यूज अगेन एंड अगेन विदाउट द नीड फॉर रिकम्पाइलेशन। फिर तो कोई सोर्स कोड भी डिलीट कर दे तो भी आपका प्रोग्राम चलेगा। Fourth point, an error report is often produced after the full program has been translated। पूरा प्रोग्राम कंपाइल हो गया, अगर उसमें एरर्स हैं, मान लो लाइन नंबर 4, लाइन नंबर 8 में एरर्स हैं, तो वो लाइन नंबर के साथ एरर की रिपोर्टिंग आपकी स्क्रीन पे दिखा देगा, यानी मैसेज आ जाएगा। एरर्स इन द प्रोग्राम कोड may cause a computer to crash। कभी कभी प्रोग्राम कोड में एरर्स की वजह से कंप्यूटर क्रैश भी हो सकता है, तो इसलिए प्रोग्रामिंग करते समय बहुत ध्यान रखना पड़ता है प्रोग्रामर्स को। These errors can only be fixed by changing the original source code and compiling the program again। इन एरर्स को दूर करने का ये तरीका है कि जहां जहां एरर्स है, उन्हीं लाइंस को चेंज करके ओरिजिनल सोर्स कोड में और दोबारा से कंपाइल करके प्रोग्राम तैयार किया जाए। नाउ लेट अस मूव टू फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, 4GL। ये भी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, but of fourth generation। Fourth generation languages are closer to human language than any other high level languages। Let us see some features one by one। First feature, highly user friendly and independent of any operating system। यानी किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल जाती है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब, जैसे मैं विंडोज पे काम कर रहा हूँ तो विंडोज पे भी चल जाएगी, एंड्रॉयड पे भी चल जाती है। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम किसका है? मोबाइल का। और कुछ एप्पल के लैपटॉप्स भी आते हैं, उसके अंदर होता है मैक, MAC, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। वैसे मैकिंतोश बोलते हैं उसको, दैट इज मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें भी चल जाता है। तो हाईली यूजर फ्रेंडली लैंग्वेजेस जो हैं, या फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस हैं, वो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम कर सकती है। वेरी हाई स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन, डिजाइन टू रिड्यूस लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग एफर्ट्स, प्रोग्रामिंग आसान हो जाती है। मिनिमम एफर्ट्स फ्रॉम द यूजर टू ऑब्टेन एनी इंफॉर्मेशन, आसानी से उसको इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है, कोई इंफॉर्मेशन चाहिए किसी कोड के बारे में। लास्ट पॉइंट, डिजाइन टू रिड्यूस द ओवरऑल टाइम टू डेवलप सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अगर जल्दी होगा तो कॉस्ट भी
कम हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट विल बी लेस. In fourth generation languages, the user has to specify only the required output and the format of the output without bothering about the steps required to obtain that. यानी पूरी प्रोग्रामिंग नहीं करनी पड़ती, हर एक काम के लिए प्रोग्रामिंग नहीं करनी पड़ती. मेन आउटपुट बता दो हमें ये चाहिए, उससे रिलेटेड जो इनपुट देना है वो इनपुट दे दो. कंप्यूटर या फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज ऑटोमेटिकली आपके लिए प्रोग्राम्स बना करके दे देगा. Now let us see these two boxes. Let's know more. So see, let's know more. Fortran बहुत पुरानी लैंग्वेज है. Fortran was one of the earliest languages and was designed for scientists and engineers. COBOL was designed for business users. In software development, beta release refers to product or a technology which is still in development but is released only for testing and evaluation purpose. For example, WhatsApp कुछ अपने फीचर्स को, नए फीचर्स को प्रॉपरली सबके लिए रिलीज करने से पहले उसका बीटा वर्जन निकालता है. बीटा वर्जन पे कुछ लोग काम करते हैं ताकि ये पता लग जाए ये बिल्कुल सही है टेक्नोलॉजी, और अगर जो टेस्टिंग चल रही है वो बिल्कुल सही हो गई, इवैल्यूएशन ओके हो गया, तब वो पब्लिकली फिर सबके लिए उस वर्जन को लॉन्च कर देते हैं. तो दिस इज कॉल्ड बीटा रिलीज. With this we have finished second part of this video, of this chapter, computer languages. If you have any doubt, you can ask me by writing in comment section, or you can directly WhatsApp. Thank you.